Follow us to stay updated on debates, discussions, facts, and tips about health. Click on the subscribe button and the bell icon for latest updates. Many parents feel a sense of worry or fear when their child is about to receive a vaccine for the first time. Concerns about pain, side effects, or simply not knowing what will happen can make the experience stressful. And that is why understanding the vaccination process is so important. When parents know what to expect, they will feel more confident and their children will feel more secure. This discussion will guide you through each step of your child's first vaccination appointment, helping you prepare, ask the right questions, and ensure the experience is calm, smooth, and reassuring for both you and your child. Welcome, everyone. I'm Dr. Soumya Saluja from Tip Media, and today we're discussing an important moment for parents, your child's first vaccination appointment. और आज हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हमारे साथ हैं जाने माने चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर विजय बड़े. Dr. Vijay Bade is a distinguished pediatrician currently practicing at Vignaharta Sai Hospital and Laboratory in Dighi, Pune, Maharashtra. His clinical expertise spans pediatric vaccinations, pediatric critical care, childhood infections, allergies, and adolescent health disorders, making him a trusted specialist for comprehensive childcare. Sir also contributes significantly to public health initiatives as an advisory committee member on vaccination and immunization practices with the Indian Association of Pediatrics, where he provides expert guidance on evidence based immunization strategies. Additionally, he is recognized as an aerospace medical examiner, extending his expertise to specialized medical certification for aviation personnel. Alongside his pediatric practice, Dr. Bare possesses extensive experience in occupational and clinical medicine. He plays a vital role in conducting DG approved medical examinations for seafarers and individuals requiring maritime and aviation fitness assessments. As a certified authority, he is authorized to carry out mandatory pre-joining and periodic health evaluations in accordance with established regulatory standards. Dr. Bare's work further encompasses adolescent health and travel medicine, guided by global protocols, along with a strong commitment to promoting first aid literacy among citizens. His active advocacy for immunization and safety through electronic and print media reflects his dedication to strengthening public health awareness. Renowned for his commitment to excellence, ethical practice, and patient centered care, he is widely regarded as a dependable and respected medical professional. तो आइए डॉक्टर विजय बड़े से समझें कि पेरेंट्स अपने बच्चों के पहले वैक्सीनेशन के अनुभव या फिर एक्सपीरियंस को कैसे सहज या फिर स्मूथ बना सकते हैं. डॉक्टर विजय बड़े, टिप मीडिया वेलकम्स यू सर. Namaste. Namaskar sir, and thank you so much for your time today sir. Sir, as children, approach their first vaccination appointment, clear guidance, it becomes very important for parents. And knowing what's normal, how the visit works, and how to keep their child comfortable, it can ease stress and boost their confidence. So, sir, with that in mind, I'll begin this discussion with a very basic question that timely vaccination इन्फेंट्स और न्यूनेट्स के केस में इतना जरूरी होता ही क्यों है एंड व्हाट मे हैपन और व्हाट हेल्थ रिस्क्स can delays in vaccination potentially create.
वैक्सीनेशन ये अभी समय की जरूरत है। जी दैट अभी हम हमारे बच्चों का अच्छा प्रोटेक्शन करेंगे तो जी लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगा। तो जी राइट टाइम राइट वैक्सीन की जी जरूरत रहती है। जन्म हो गया, जन्म को हम लोग 24 घंटों के अंदर बीसीजी, ओरल पोलियो, हेपेटाइटिस बी देते हैं ताकि वो जी हेपेटाइटिस से बीमारी से प्रोटेक्ट करे, ट्यूबरकुलोसिस से करे और पोलियोमाइलिटिस के करे। हम जब जी। बच्चे थे तब हमारे सोसाइटी में एक दो तो पोलियो के केसेस दिखते थे, हाँ लेकिन जी हम लोगों ने जो आजकल एनआईसीयू का एडवांसमेंट किया है तो हम हाँ लोग जी गांव गांव में भी पोलियो के केसेस यानी नहीं है। जी नियर बाय सिंस 2 to 3 years सिंगल केस भी इंडिया में डॉक्यूमेंट नहीं हुई। ये अच्छे जी वैक्सीन की सक्सेस है। जी 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 सर। सो पोलियो इराडिकेशन बेसिकली एक वैक्सीन की सक्सेस का एक अच्छा सक्सेस, एग्जाम्पल हाँ है। जी। जी जी सर। जी बहुत ही बढ़िया बात से हम शुरू कर रहे हैं इसको। बट सर, अब जैसे पेरेंट्स को डॉक्टर्स के पास जाना है अपने बच्चे की वैक्सीन के लिए, राइट सर, तो उनके पास किस तरह की इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जो उनके पहले वैक्सीनेशन की सक्सेस में हेल्प करें? सो व्हाट इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स शुड पेरेंट्स प्रिपेयर और ब्रिंग टू द फर्स्ट वैक्सीनेशन अपॉइंटमेंट? शर्मा जी, आपका सवाल बहुत सुंदर है। मैं जी बाल रोग चिकित्सक के साथ मैं दो बच्चों का पापा भी हूँ। तो हाँ जी ऑब्स्टेटिक हिस्ट्री, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी का हिस्ट्री हम लोग को चाहिए। जी बर्थ हिस्ट्री चाहिए कि बेबी ने बर्थ के टाइम क्राई इमीडिएटली किया है क्या, सीजर जी हुआ है या नॉर्मल डिलीवरी हुआ है, हाँ ये जी रिकॉर्ड चाहिए। पोस्ट नेटल जी डिलीवरी के बाद उसको एनआईसीयू में कांच के पेटी में रखा है कि नहीं, वो सब रिकॉर्ड चाहिए। तो मैं पेरेंट्स को विनती करूंगा कि उन्होंने लेबर हिस्ट्री, बर्थ रिकॉर्ड सब अपने साथ में लेके आना है। हाँ जी उसके बेस पे हम हमारे यहाँ रिकॉर्ड करते हैं कि इसको बेबी क्राइड इमीडिएटली आफ्टर बर्थ, बेबी के जन्म के टाइम का अबगर स्कोर क्या था, ये सब हम रिकॉर्ड में हम लोग डॉक्यूमेंटेशन रखते हैं। जी या अगर बेबी को एनआईसीयू में रखा रहेगा तो हाँ जी वो पीरियड कैसा था, तो वो हम मेंशन करते हैं। जो बाद में नेक्स्ट फॉलोअप के टाइम हमारे पास भी आए या दूसरे पीडियाट्रिशियन के पास भी हो गया तो भी वो बेनिफिशियल रहता है। हाँ जी बाद में हम रिक्वेस्ट करेंगे कि बेबी को हर पीडियाट्रिशियन का क्लिनिक आजकल एयर कंडीशन रहता है, तो बेबी को थोड़ा थर्मल कपड़ा कपड़ों में लाना अच्छी बात है। बाद में वैक्सीन फ्रेंडली पायजामा लेके आओ, बाद में वैक्सीन फ्रेंडली ड्रेस में लेके आओ, तो वो टाइम टाइम नहीं लगता उसको, बेबी को या बेबी को फुल ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ती। जिधर वैक्सीन देना है उधर ही हम ओपन करेंगे। हम लोगों ने जी देखा है कि कोविड के टाइम में वो स्लीव्स रहते थे फीमेल हाँ जी पेशेंट्स के, तो जी उससे हमें प्रिक देने में इजी होता था इजी और रहे। उसको, वो पेशेंट को भी थोड़ा अच्छा लगता था, उसको भी शर्मंदगी फील नहीं होती थी। हाँ जी हाँ जी सर। अच्छा, अभी ये तो हो गया हमारी जो पेरेंट्स इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड डॉक्टर के पास लेकर आएंगे उसके लिए। हाँ जी। आपने उसके बाद में क्लोथिंग की बात करी, तो जस्ट इन लाइन विद दैट सर, क्या क्लोथिंग के अलावा कुछ और स्टेप्स भी हैं जो पेरेंट्स को लेने चाहिए जस्ट टू इंश्योर दैट देयर चाइल्ड इज रेडी फॉर वैक्सीनेशन? तो उसके साथ उन्होंने बेबी के लिए बेबी का फीडिंग लाना चाहिए। बाद जी में हम लोग सिर्फ पैरासीटामोल देते हैं, वो हाँ जी आपके घर में रहेगा, हाँ तो जी वो भी लाना चाहिए। जी और हाइड्रेशन, बड़े बच्चे रहेंगे तो उनको खाने के लिए कुछ तो स्नैक्स चाहिए ताकि बेबी एंगेज होता है। और हाँ जी आप डॉक्टर के साथ अच्छा अच्छा टाइम निकाल सकते हो कि आपके सवाल जो दिल में हिचकिचाहट होती है कि इसके जी बाद जी बुखार आने वाला है कि नहीं, नेक्स्ट हाँ जी वैक्सीन कौन सा देना है, वो अगर ऑप्शनल रहेगा तो वो कौन से डिसीज से प्रोटेक्ट करेगा, ये सब जी आपको ये करना पड़ेगा। हाँ जी और प्रेफरेबली आप अपॉइंटमेंट आपके वीकली आपके पहले ले लो ताकि आप दूसरे दिन बेबी को थ्रू आउट डे मॉनिटर कर सको।
जी जी हाँ, सर। तो हम लोग MIDC जोन में प्रैक्टिस करते हैं, तो थर्सडे वीकली ऑफ रहता है, और लोगों का संडे वीकली ऑफ रहता है। तो हम लोग हाँ जी। वेनसडे और सैटरडे या फ्राइडे नाइट को हम लोग अपॉइंटमेंट देते हैं कि दोस्त पेरेंट्स को सैटरडे संडे बेबी को मॉनिटर कर सके, क्योंकि कुछ वैक्सीन के बाद बुखार आता ही है। तो ठीक है। पेरेंट्स एक अच्छे डॉक्टर रहते हैं, तो वो लोग इवेल्युएट करते हैं। जी। आया मोस्टली जो आजकल सब जगह केयर टेकर है, तो हाँ जी। उसको लगता है सोया है तो उसका काम इजी हो गया, तो हम्म। हैप्पी होती है। लेकिन मैं ही मेरे घर में जाऊंगा और बच्चा सोया है, 10-15 मिनट में चेक करूंगा कि बुखार तो नहीं है ना, जी। हाइड्रेशन चेक करूंगा। तो हाँ हम जी। लोग पैर से उसको हैंडल करते हैं। उसके लिए कम से कम इंजेक्शन देने के बाद का डे आप बेबी को डिवोट करना चाहिए। ओके। राइट सर। हाँ। राइट। एक और चीज है इसमें कि व्हाट शुड पेरेंट्स एक्सपेक्ट ड्यूरिंग द इनिशियल कंसल्टेशन और असेसमेंट विद द डॉक्टर और नर्स एट द स्टार्ट ऑफ द अपॉइंटमेंट। अभी हम अपॉइंटमेंट की शुरुआत में ही आए हैं, जहां पर आपने बोला कि पेरेंट्स को अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर आने चाहिए, बच्चे का फॉर्मूला लाना चाहिए, थोड़े कंफर्टेबल क्लोथिंग में होना चाहिए। तो आई एम श्योर इसमें ऐसी बहुत सारी डिस्कशंस भी होती होंगी, इंक्लूडिंग द द मेडिकल हिस्ट्री ऑफ द चाइल्ड, एलर्जीज, या फिर कोई प्रीवियस वैक्सीन का रिएक्शन, जो मुझे लगता है कि उनके वैक्सीनेशन एक्सपीरियंस को थोड़ा सेफ कर देगा। सो उस फेज में पेरेंट्स को किस तरह से ये बातचीत डॉक्टर्स के साथ करनी चाहिए? बेबी आता है तो मैं उसको इमिडिएटली टेबल पे नहीं सुलाता। तो हाँ हम जी। थोड़ा बेबी के साथ, बेबी को हमारे क्लिनिक को फ्रेंडली करते हैं, उसके जी। साथ थोड़ा हंसी मजाक करते हैं, उसका मोटर हम्म। डेवलपमेंट, न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट हम लोग चेक करते हैं। उसके हाँ साथ जी। उसका हाइट वेट हम लोग करते हैं जी। ग्रोथ चार्ट मॉनिटरिंग के लिए। हेड जी। सरकम्फरेंस, चेस्ट सरकम्फरेंस करते हैं। तो उसके बाद मैं हेड टू टो का रेस्पिरेटरी रेट कैसा है वो देखता हूँ। बाद जी। में ऑस्कल्टेशन करता हूँ स्टेथोस्कोप से कि कुछ उसको रिकरेंट इन्फेक्शन यानी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन तो नहीं है ना, या उसका जी। टेम्परेचर हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। जी। तो उससे हमें जज होता है। फिर हम हाँ लोग जी। पेरेंट्स के साथ डिस्कस करते हैं कि उसको एग एलर्जी तो नहीं है ना, या नियोमाइसिन या कुछ इंजेक्शन की एलर्जी तो नहीं है ना, वो हम हम्म। चेक करते हैं। बाद में जी। हम लोग डिस्कस करते हैं कि इसके पहले वैक्सीन हुआ रहेगा तो उसको हाँ जी। फिब्राइल कन्वर्जन आया था क्या नहीं था, या उसके एल्डर सिबलिंग्स को फीवर आके फिब्राइल कन्वर्जन में वो लैंड हुआ था क्या, वो हम चेकआउट करते हैं। ठीक है। तो फिर उसको वैसे अगर फिब्राइल कन्वर्जन हुआ रहेगा तो हम एक असेलुलर टाइप ऑफ पर्टोसिस रहता है, वो हम इंजेक्शंस प्रेफरेबली देते हैं। वो टाइप का हम ये करते हैं। उनका हम लोग जब जनरल असेसमेंट करते हैं, वो असेसमेंट में हम उस यानी उसका स्टेयरिंग, उसका गेज कैसा है, वो हम लोग इवेल्युएट करते हैं। जी। जी सर। जी। और अभी जैसे सारा इवैल्यूएशन आपका कंप्लीट हो गया है, और आपने हमें स्टार्टिंग में भी बताया कि कुछ जो वैक्सीन्स होती हैं वो चाइल्ड बर्थ पे ही दे दी जाती हैं, जो कि बच्चों को सिवियर कॉम्प्लिकेशन से बचाता है, राइट? तो सर, विच वैक्सीन्स आर टिपिकली एडमिनिस्टर्ड एट द फर्स्ट अपॉइंटमेंट एंड हाउ आर दे यूजुअली गिवन? एट बर्थ हम लोग विद इन 24 आवर्स BCG देते हैं, जो जी। लाइफ लॉन्ग ट्यूबरकुलोसिस से प्रोटेक्शन करता है। बाद में हाँ जी। ओरल पोलियो वैक्सीन देते हैं। जी। पोलियो का वैक्सीन जो मुंह से देते हैं, वो हाँ जी। पोलियोमाइलाइटिस से प्रोटेक्ट करता है। और जी। तीसरा हम लोग हेपेटाइटिस बी देते हैं, जो जी। हेपेटिक कैंसर से बेबी को, या हेपेटाइटिस से बेबी को प्रोटेक्ट करता है। जी। बाद में हम बेबी 6 वीक का, 10 वीक का, 14 वीक का होता है तो हम उसको हाँ जी। डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटेनस, निमोकोकल और हिब इन्फ्लुएंजा का हम लोग उसको प्रोटेक्शन देते हैं। सेम जी। टाइम हम उसको पोलियो ओरली देते हैं, हाँ और जी। हम लोग उसको रोटा वायरस उसको ओरली एडमिनिस्टर करते हैं। हाँ जी। हाँ जी सर। हाँ, 6 मंथ के बाद हम लोग इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, एक ऑप्शनल वैक्सीन है जो बच्चों का रिकरेंट अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करता है, वो ठीक देते है। हैं। 9 मंथ ठीक। को हम बेबी को मिजल्स का वैक्सीन देते हैं। ठीक है। फर्स्ट
आफ्टर फर्स्ट बर्थडे हम उसको हेपेटाइटिस ए का वैक्सीन देते हैं। जी। बेबी 1.5 साल का हो जाएगा तो हम उसको फिर से बूस्टर डोज देते हैं। पांच हाँ जी। चीजों का हम रिपीटेड बूस्टर डोज देते हैं। जी। बाद में हम 18 मंथ का हो जाएगा तो हम MMR देते हैं, मीजल्स मम्स रूबेला देते हैं। ठीक बाद है। में हम लोग 5 इयर्स को उसको DPT देते हैं। उसको अच्छा। ऐसा हम लोग नाइस वैक्सीन कवरेज हम लोग करते हैं। आई थिंक अप टू, तो आई थिंक काफी लंबा एक स्केड्यूल है वैक्सीन का। सो एज पर द चाइल्ड्स विजिट टू द डॉक्टर और उसकी हिस्ट्री, उसी हिसाब से वैक्सीनेशन दिया जाता है बच्चों हाँ जी। को। हाँ जी। हाँ जी सर। ओके। अभी जैसे आपने बोला सर कि जैसे ही बच्चा पहली बार आता है आपके क्लिनिक पे, तो आप थोड़ा देर उनके साथ खेलते हो, उनसे बात करते हो, उनको थोड़ा डिस्ट्रैक्ट करते हो। तो उन्हीं लाइंस पे अब थोड़ा सा बात करते हैं कि सर, व्हाट डिस्ट्रैक्शन or comfort techniques do medical experts like yourself commonly recommend or use to reduce a child's anxiety or discomfort during the injection of the vaccine? हम लोग लाइट टेक्निक यूज करते हैं। बजर रखा है तो हाँ बेबी जी। बजर की तरफ अट्रैक्ट होता है, या सिंपल रिंगिंग बेल रहती है तो हम जी। लोग वो करते हैं। तो बेबी पेन पेन तो कम रहता है, लेकिन उसको वो थोड़ा अलग एटमॉस्फेयर में आता है तो वो कॉन्शियस रहते हैं, तो उसका डिस्ट्रैक्शन होता हाँ है। जी। हाँ जी। फिर हम जिधर इंजेक्शन दिया वो साइड पे स्टिकर लगाते हैं। वो स्टिकर से ठीक उसको बोलते हैं हम आपको 5 स्टार दिए, आप इंटेलिजेंट हो। है। तो ठीक है। बेबी वो 5 स्टार देखता रहता है। राइट। बाद में राइट। हम मदर को एडवाइस करते हैं, एक तो ब्रेस्ट फीडिंग कंफर्टेबल है तो ब्रेस्ट फीडिंग दे दो, या जी। उन्होंने कुछ लाया रहेगा तो वो भी हम्म। उसको स्नैक्स दे सकते हैं। जी। हाँ। जी। और अगर 6, 10, 14 वीक का रहेगा तो हम लोग पेरेंट्स को गाइड करते हैं कि बुखार तो आने के चांसेस ज्यादा है, आप पैरासीटामोल का फर्स्ट डोज इधर ही देके जाओ। जी। क्योंकि लोग दूर दूर से आते हैं, हाँ उनको जी। घर पहुंचने के लिए कभी कभी ज्यादा टाइम जी। लग सकता है। हाँ जी। हाँ जी सर। और अभी जैसे ये मेरा खुद का भी पर्सनल मानना है कि हमेशा डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स को भी लेनी चाहिए। तो हाँ जी। आपने वैक्सीन दे दिया, आपने एक अच्छा माहौल बच्चे के लिए क्रिएट कर दिया, आपने अपनी तरफ से अपना बेस्ट दिया, बट देन एट द सेम टाइम देयर समथिंग कॉल्ड पोस्ट वैक्सीनेशन केयर दैट शुड बी डन एट होम। और सो उस केस में व्हाट गाइडेंस would you give to the parents so that in case अगर कोई अलार्मिंग साइन है या कोई ऐसा लक्षण बच्चे ने डेवलप कर लिया है जिसके लिए मेडिकल अटेंशन चाहिए, तो उसमें थोड़ा हेल्प कर सके। हम लोग वैक्सीन देते वक्त ही उनके घर में डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी कौन है वो जज करते हैं। फिर अच्छा। मम्मी को और डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी को हम टारगेट करते हैं कि ओके। आप आपको यानी 8 घंटों के बाद उसको पैरासीटामोल देना है। बाद में ठीक रेड है। फ्लैग साइन, अगर उसको ब्रेथलेसनेस शुरू हो गया, बाद में वो बहुत ही क्रैंकी है, तो हाँ बाद जी। में सांस लेने में दिक्कत है तो आपको इमीडिएट लेके आना है। बाद जी। में वो लिमिटेड पैर का मूवमेंट कर रहा है, जी। फ्यूरिश है, थोड़ा डाउन लग रहा है, आपको रिस्पॉन्ड इतना नहीं दे रहा, तो भी उसको आपको 24 आवर्स के बाद लेके आना है। हाँ जी। और थर्ड है वो जनरल बेबी है, इंजेक्शन के बाद रूटीन साइड पे दर्द होता है, लाल हो गया है, तो वो भी हम करते हैं। तो इसमें सिर्फ रेड और येलो फ्लैग को हम लोग इमीडिएटली हमारे हॉस्पिटल में लेके आने के लिए हम लोग एडवाइस करते हैं। हाँ जी। हाँ जी सर। और अभी थोड़ा सा मैं आती हूँ सोशल मीडिया पे। आजकल हमारे को हर तरह से सोशल मीडिया ने घेर लिया है, और बहुत सारा मिस इन्फॉर्मेशन है। आई एम श्योर आप अपनी प्रैक्टिस में भी काफी मिथ्स को रोज डेली बेसिस पे देखते होंगे, उनको पेरेंट्स को उनको क्लैरिफाई भी करते होंगे। तो सर, ऐसे थोड़े एंग्शियस पेरेंट्स के लिए व्हाट रोल डज पेरेंटल हेल्थ लिटरेसी वुड प्ले, in understanding these vaccine schedules and interpreting medical advice and reducing anxiety before the appointment? आजकल के पेरेंट्स एजुकेटेड है तो हम लोग उनको बोलते हैं कि हम, जब मैं छोटा था तब हमारे सोसाइटी में पोलियोमाइलिटिस के पेशेंट हर गली में, हर नुक्कड़ पे हम लोग
देखते थे। लेकिन पोलियो का अच्छा वैक्सीनेशन हो गया तो पोलियो का सिंगल केस भी हमें मिलता नहीं। सेकंड, हम जी। लोग बोलते कि मीजल्स का हाँ जी। पुरानी इसमें बहुत आउटब्रेक होता था। मीजल्स हाँ के जी। कारण कुछ कुछ वुमेन्स के ऊपर चेहरे पे स्कार रहता था। वो भी स्कार जी। आजकल हम लोग देखते नहीं, क्योंकि वो अच्छे वैक्सीनेशन के कारण हाँ होता। जी। हम लोग उनको, और हम लोग रादर देन वो लोग मिस इन्फॉर्मेशन से डाइवर्ट हो जाए, तो हम लोग उनको हेल्थ ब्लॉग्स हमारे प्रोवाइड करते हैं। बाद में हाँ जी। वैक्सीन का इंफॉर्मेशन देते हैं, ताकि हेपेटाइटिस ए का वैक्सीन एक बार ले लो तो जी। थ्रू आउट लाइफ आप हेपेटाइटिस ए से प्रोटेक्ट होते हो। इसके हाँ बारे जी। में हम लोग उनको ये करते हैं, अच्छा इनपुट्स देते हैं, क्योंकि जी। साइंटिफिक इंफॉर्मेशन जी। प्रोवाइड करना हमारी एज अ लीडिंग पीडियाट्रिक प्रैक्टिशनर हमारी जिम्मेवारी है कि उनको करेक्ट इंफॉर्मेशन दे दो। हाँ जी। उसके लिए इवन उनके कुछ इनपुट्स रहेंगे, उनके सवाल आते रहेंगे, तो हम उसको जवाब देते हैं। एक छोटी हाँ जी। स्टोरी मैं आपको बोलूंगा जी। कि मैं पीडियाट्रिक पास आउट होने के बाद मेरा पोस्टिंग मुंबई में, मुंबई के सबर्ब में था। तो जी। हम लोग को इन्फॉर्म किया गया कि एक जगह के बच्चे का पैर हिल नहीं रहा। तो मैं वो उनके मोहल्ले में गया। हाँ जी। तो मैंने बेबी को एग्जामिन किया। जी। उसके पैर को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था। हाँ तो जी। उसकी नानी मुझको बोली, डॉक्टर साहब आप अभी क्लियर करो, इसको पोलियो नहीं है ना। क्योंकि हमारे मोहल्ले वाले हमें यानी हमारा बॉयकॉट करने वाले हैं। तो हम्म। मैंने बोला, नानी जी हम आपके बच्चे का स्टूल सैंपल लेके जा रहे हैं। हाँ स्टूल जी। सैंपल के रिपोर्ट के बाद हम आपको बोलेंगे। हाँ वो जी। टाइम मैंने बेबी की मम्मी की तरफ देखा। मम्मी एकदम साइलेंट थी। 24 आवर्स के बाद मैं स्टूल का सैंपल का रिपोर्ट लेके गया, बेबी को देखा, बेबी इम्प्रूविंग था। तो हाँ जी। अ, फिर मैंने उसकी मम्मी के तरफ देखा। तो उसकी माँ मुस्कुराई। वो बोली, डॉक्टर साहब मुझको मालूम था मेरे बच्चे को पोलियो नहीं होने वाला। हाँ क्योंकि जी। जो जो आशा वर्कर हम्म। हमारे यहाँ आती थी, उसने जब जी। जब मुझको पोलियो का टीका देने के लिए बुलाया था, वो सब टीका मैंने बच्चे दिया। को दिया है। उसके लिए उसके मम्मी को कॉन्फिडेंस था कि मेरे बच्चे को पोलियो नहीं पोलियो। होने वाला। वैसा अ, अच्छा वैक्सीन रखोगे, वो डिसीजेस नहीं होने वाली। जी। जी। आई थिंक ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम जागरूक रखें और अपने आप को ना अ, बीमारी से बचाने के लिए सबसे जरूरी है सही लोगों की संगत और सही लोगों के पास जाकर पूछना, देन जस्ट फोन पे स्क्रॉल करना। तो बहुत जरूरी है कि आप टाइम से अगर आशा वर्कर है या फिर आपके पास डॉक्टर है तो आप उनसे जाके सही जानकारी लें, वो सबसे ज्यादा जरूरी है इस वक्त। बिल्कुल सही बात सर। So I'm just going to summarize this wonderful session with one final question, sir. कि ऐसे एंग्शियस और वर्किंग पेरेंट्स के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव टू डू लिस्ट हमें बता दीजिए, जहां पर उनको थोड़ी आसानी रहे अपने बच्चे का पहला वैक्सीनेशन अपॉइंटमेंट की प्रिपरेशन करने के लिए। सो कॉम्प्रिहेंसिव टू डू लिस्ट फॉर पेरेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर अ चाइल्ड्स फर्स्ट वैक्सीनेशन अपॉइंटमेंट, सर। आजकल सब पेरेंट्स बिजी हो गए, तो मैं बोलूंगा कि आप आते वक्त आपका डिलीवरी का रिकॉर्ड लेके आओ। उसके बाद जी। बच्चे का बर्थ का बेबी कार्ड इमीडिएटली आफ्टर बर्थ, या नॉर्मल डिलीवरी है या सीजर है, वो जी। रिकॉर्ड लेके आओ। बाद में हाँ जी। पोस्ट नेटल, उसको न्यू एनआईसीयू में रखा था क्या, और वो आप रिकॉर्ड लेके आओ। आते वक्त ही बेबी को जो ड्रेस पहना होगे वो वैक्सीनेशन फ्रेंडली, जी। स्लीवलेस वाला पैजामा, वो एक करो। बाद हम्म। में आपको बेबी का हाइड्रेशन मेंटेन करने के लिए, या बेबी फिट्स रहेगा, वो भी आप लेके आओ। आपके जी। पास बुखार का दवा रहेगा, हाँ जी। वो साथ में लेके आओ। ताकि हाँ जी। वैक्सीनेशन के बाद हम लोग मेरा टेंडेंसी है 10 मिनट टू 30 मिनट में वेटिंग रूम में बिठाता हूँ। तो जी। आफ्टर दैट हम लोग फर्स्ट डोज ऑफ पैरासीटामोल हम दे के ही उनको घर भेजते हैं। हाँ जी। तो ये स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल आप फॉलो करो, जी। तो सब स्मूथ गोइंग चलता है। जी। जी सर।
बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने सारा कुछ एक साथ रखा है कि पहले अपने बच्चों के सारे रिकॉर्ड्स रेडी रखिए, बच्चों को कपड़े और उनको कंफर्टेबल करने के लिए अच्छी हाइड्रेशन का सामान आप रेडी रखिए, एंड ऑफ कोर्स मोस्ट इम्पोर्टेंटली अपने डॉक्टर की सारी बात मानिए, तो आई थिंक ऑटोमेटिकली एक्सपीरियंस बहुत स्मूथ हो जाएगा. Nicely, how very wonderfully put, sir. So, on that note, I really appreciate your presence with us today, and I'm hoping that the enlightening information shared will be valuable to many families out there. So, thank you so much for joining us. It's really been a pleasure. थैंक यू. मैं आप जैसे थीप हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड, मीडिया जैसे लोगों ने भी हम लोगों को, जो जैसे मैंने बोला कि मैंने जो खुद का पहला पोलियो का स्टोरी देखा, तो मैं मेरा लगाव वैक्सीनेशन की तरफ वो उस दिन से और एग्रेसिव हो गया. तो जी, आप लोगों ने भी ऐसा अच्छा कवर करोगे तो डेफिनेटली हम लोगों का काम इजी हो जाएगा, क्योंकि जी, हम हर एक पेरेंट्स को काउंसिल नहीं कर पाते. हाँ आजकल जी, सब टेक से भी हो गए हैं. तो बिल्कुल, उनको अगर घर में ही उनके मोबाइल पे ही अगर ये इंफॉर्मेशन होगी, कि मोहल्ले वाली औरत भी कॉन्फिडेंट रहती है कि मैंने जितना भी आशा वर्कर ने डोज दिया, मैंने वो सब वैक्सीन लिया, तो मेरे बच्चों को नहीं होने वाला. तो आप लोग तो वेल क्वालिफाइड हो, आपके बच्चे तो यानी इंटरनेशनली रोम करने वाले हैं. तो आपने इंटरनेशनली रोम के हिसाब से अपने बच्चों को वैक्सीनेशन देना चाहिए और एंजॉय करना चाहिए. जी, जी सर, बिल्कुल. तो ये सारे एजुकेटेड पेरेंट्स के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज है कि इट्स वेरी इम्पोर्टेंट टू टू फॉलो द राइट पर्सन, एंड ऑफ कोर्स टू फॉलो द एविडेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन दैट इज अवेलेबल. हमें रैंडमली सब पे विश्वास नहीं करना चाहिए. बिल्कुल सही बात बोली है सर. सो थैंक यू सो मच ऑन दैट नोट. And for more such informative videos, please do subscribe to our channel and press the bell icon for regular updates. Thank you once again, sir. Thank you. थैंक यू.